ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂದರೆ ನನ್ನದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಯಾರದ್ದೂ ಆಸ್ತಿವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಮ್ಮತಿಗಳ ಆಸ್ತಿ. ಅಂದರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಹಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಅಜ್ಜು ಹೇಳಿದರು. ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಚೇರಿ ಹಿಂಭಾಗವಿರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 1,500ನೇ ವರ್ಷದ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ನಬಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ವಿಧವಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒಳಪಡುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಂದ 10% ಅಥವಾ 20% ಸಮುದಾಯದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ 2 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಸಮುದಾಯದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕಳೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಲಾ 5,000 ರೂಗಳ ಚೆಕ್ಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಹ ಮನಗೊಂಡು ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮಂತೆ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ರೂಪಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ 100 ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ 5 ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮಹತ್ತರವಾದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಬಂದರೆ ಮಿಡಿಯುವ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸದಾ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕೈಯಲಾದ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತಾ ಯಾರೇ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಗೈದರೂ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನ್ಯರ ಪಾಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂದೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಗುರುಗಿದರು. ಇಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಮುಫ್ತಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜು ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ನೂತನ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ 2 ಹೊಸ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र के करम के हमारे ऐसे मैसूर के उलमाए कराम, हमारे सरखाजी साहब, मुफ्ती ताजुद्दीन साहब, मुफ्ती मुश्ताक साहब, हमारे बुजुर्ग शाह साहब, हमारे जबरदा, हमारे साबिरदा, हमारे ऐसा बहुत से हमारे स्वामी जी, फादर, यहाँ बैठे हुए जितने भी इदारे के जिम्मेदार हजरात, मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे इस बहनों की, माओं की खिदमत करने का एक छोटा मौका अल्लाह दिया। आज हो रहे खुशी की बात क्या कर को बोले तो वक्फ बोर्ड कर को बोले तो तुम्हारी मेरी किसकी भी आस्ती नहीं, पूरे उम्मत मुस्लिम की आस्ती है। आज हमारे बुजुर्ग जिस नियत से आने वाली नस्ल के वास्ते ये कीमती चीजा जो वक्त कर को बैठे, वहां के जिम्मेदार हमें लोग, तुम्हें लोग, सब बन को ही अल्लाह हमने एक खिदमत करने का बहुत बेहतरीन मौका देखो है। एक तो इदारे की खिदमत के साथ उम्मत मुस्लिमा की भी खिदमत करने की अल्लाह हमने सहूलत और वो पोजीशन अल्लाह की तरफ से मिल पाए, हमें सब खुश नसीबा। इसमें बहुत से हमारे मैसूर के इदारे मिशना के बारे में ताउन कर को ही मैं उनका पूरे का शुक्रगुजार हूँ कि हमें ऐसे इदारे से जो मिशना पूछे कि वक्त की जहाँ आमदनी आ रही है, हमें कौन भी सदर को अंदे, सेक्रेटरी को अंदे, जिम्मेदारों को अंदे तुम्हारे प्रॉपर्टी में हिस्सा देवर को नहीं पूछे, तुम्हारे जेब से देवर को नहीं पूछे। जो आमदनी आ रही है, 1 रुपया आमदनी आ रहा है, ये 20%, ये 10% तुम्हें लोग उम्मत मुस्लिमा के गरीबां, जैसा कि एजुकेशन है, जैसा कि हेल्थ है, जैसा कि हमारे माओं का मसला है, उनकी रोजी का मसला है, बहुत से इदारे है माशाल्लाह। हमारी मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब भी हमें 2 महीने हुआ आज ये डेट को हमारी कमेटी चार्ज देखो 2 महीने में हम सामने 15 अगस्त का एक मौका आया, पूरे उलमाए कराम, हमारे मुफ्ती ताजुद्दीन साहब, हमारे जिम्मेदारों से मशवरा कर उस दिन एक 40-50 बच्चों को जो एसएलसी में अच्छे नंबर लेकर पास हुए थे, ऐसे बच्चे क्या उनको थोड़ी मदद मिल गई तो जाको आइंदा डॉक्टर इंजीनियर बनती। वैसे एक सर्वे कर को एसएलसी के बाद पीयूसी को जो जाना फ्यूज बनने का था, वो इदारे वाले से बात कर को 5-5 हजार रुपया उनको डायरेक्ट कॉलेज को, ना वक्फ बोर्ड के कमेटी के मेंबर को भी नहीं, वहां के ऑफिसर के थ्रू भी नहीं, डायरेक्ट कॉलेज को फ्यूज बनने का वो इदारे वाले मौलाना में हाथ में भी नहीं लिए चेक, वो इदारे वाले को दावत दी है, उन्होंने चेकबुक ले लेकर 5-5 हजार रुपए जिस कॉलेज में उनकी एडमिशन हो गए वो कॉलेज को डायरेक्ट दिया। वो उसके साथ उनके वालिद वालिदा को भी बुला को उनकी हिम्मत अफजाई करे, ये काबिल बनी तुम्हें कि अच्छे नंबर लेने के, जो एसएलसी में बिल्कुल टॉप लेवल में जो पास हुए थे, वैसे बच्चों को हमारे आजादी के दिन, आजादी के फंक्शन के दिन जो करे, वो बहुत से जने को क्या हुआ कर तो बच्चे इतना दुआ करे, माँ बाप इतना खुश हुए, हमने अफसोस भी होता था कि वो अगर को बोले तो हमारी वक्फ बोर्ड की ऑफिस के फंक्शन है, तुम्हें लोग आ जाओ, तुम्हारे बच्चों को बुला ले, उनका डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे, बोलना क्या नहीं बोलना मालूम नहीं मुझे, 90% आदमियों को वक्फ बोर्ड की ऑफिस मालूम नहीं, कौम के हमारे बच्चे नौजवान वारिसदार ये प्रॉपर्टी के काम वक्फ बोर्ड ऑफिस कर को बोले तो हमें हमारे होटल के नौजवान आज करी बिरयानी पैराडाइज चला रही ना, वक्फ बोर्ड के नाम से ज्यादा बिरयानी पैराडाइज के पीछे करने की नौबत आ गई हमें। मैं अफसोस भी हुआ, उनके ऊपर नाराजगी भी हुई, ये तुम्हारा हक, ये तुम्हें लोगों को पूछना वक्फ बोर्ड क्या, वक्फ बोर्ड से सहूलत क्या है, क्या सहूलत है, कितने आमदनियां इदारे से आ रही, कितने आमदनियां खर्च कर रही, हर उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है। आज के जमाने में मैं देख रहा हूँ, आज हमें सियासत में भी, अदमिया में भी, मस्जिद के जिम्मेदार उलमाए कराम से बैठने का भी मौका होता है। 20-30 की सीट को, 10-20 की सीट को, 10 सड़ी को भाया कोर्टाम को फिर ले को। आज अल्लाह ये जो प्रॉपर्टियां रखी, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनको इसका बिल्कुल क़यामत तक सवाब पहुंचाए।
कि आइंदा आने वाली उम्मत के वास्ते इतने बड़े प्रॉपर्टियां रखोगी। आज उसका इस्तेमाल, आज उसकी इस्तेमाल में आ रहे होने आमदनी के हकदारा गरीब, हमारी अवाम, बीमारा, हमारे गरीब जो एजुकेशन के वास्ते मस्जिद आंगने जाको, जो उनके मावा मेरे बच्चे को भुक्का दिलाओ, उनके मावा मस्जिद में ऐलान करो मेरे बच्चे की फीस बनना, भुक्का को पैसे नहीं करी। इतने बड़े प्रॉपर्टियां हमारे बुजुर्ग रखो जा, कोई इसका इस्तेमाल सही करना कर रही बहुत जन है। मैं नहीं कर रही, घर को बोला तो भी गलत होता है। जरी जगह मनमानी चल रही है। जो काम असल है, जो बुजुर्ग हमारे ये वक्कर को गए, जो प्रॉपर्टियां बचा को गए, उनके बच्चा के हिस्से में नहीं दिए, उनके खानदान के हिस्से में नहीं दिए, उम्मत मुस्लिमा के वास्ते जो बचा को गए, आज कहते की जने दुआ भी कर रही, कहते की जने बदवा भी कर रही। बदवा की कर रही तो बहुत अफसोस होता है। एक जगह जाको मैं पूछती, ये दुकान का किराया कहता था तो 30,000 रुपए का थी, मुफ्ती साहब 30,000 रुपए की थी। वो की प्रॉपर्टी के दुकान को जाको पूछती है मैं, कितना भाड़ा दे रही तो 1,200 का। उसके पहले उन्होंने कहा कि भाड़े कुछ थे, तुम्हें कितने देते थे तो 15,000 देते थे, अब कितने दे रही तो 1,200 का। उन्होंने खाली उनका खानदान, उनका घर, उनके जोरो बच्चे, उनके बच्चे अच्छा पढ़ना, उनका घर अच्छा होना, वहां जो कमा रही वो कमाई में। कहते हुए ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं है। मौलाना 5 और दिया मालूम उनको, तो ज्यादा बोल रहा तो और सही बोल रहा हूँ को, और सही बात करे तो बहुत जने को तकलीफ होती है। मुझे झूठ बोलना नहीं आता। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें किसके ने भी पैसे नहीं पूछे, पूछते भी नहीं क्यों, तो हमें पैसे वाले हम ना दे को आदत, मंगले को आदत नहीं। डायरेक्ट मशीन वाले का नंबर दिए, कॉन्टेक्ट नंबर तीनों लेते तो 12.5। हमें गुजारिश के लिए ये इदारे वाले दिला रही, सो इदारे वाले हमको डिस्काउंट दो, मैं 1,000 रुपए डिस्काउंट हुआ, 11,500। डायरेक्ट वो इदारे वाले उनको चेक दिए, मिशना या डिलीवरी दी। ये पेंडाल जो इंतजाम करी हमारी कमेटी के तरफ से कर कोई, उसमें बहुत जने हमारे अमजद भाई, अल्लाह उनको कमाई में बरकत दो। रात के 4 बजे तक उन्होंने उनके पूरे 3 बच्चे, और 4 बजे जाको 6 बजे आ गया हमारे मेंबर, उन्होंने पेंडाल का दुकान है, अल्लाह उनको और 100 दुकान बनाने की सहूलत है। और ऐसे हैं कि दुआ लेने वाले का मजा मुझे मालूम है, मैं भी क्या भी नहीं, मैं भी फ्री नहीं कर रहा हूं। अल्लाह इनकी दुआ से क्या सहूलत देता दुनिया और आखिरत में मुझे टेस्ट मालूम है। हमारे बाबा भी एक गरीब टैक्सी ड्राइवर है, ये काम में लगे, हमें खल की खिदमत करते गए, अल्लाह हमने तरक्की देते गया। 1 रुपया अल्लाह के नाम को खैर करे, अल्लाह 70 रुपए की बरकत दिया। आज मेरे भाई पूरे करोड़पति, हमारा बाबा एमएलए नहीं, हमारे बाबा पंचायती मेंबर भी नहीं, एक भाई कारपोरेटर, एक भाई फाइनेंस कमेटी चेयरमैन और एक भाई पंचायती मेंबर सिद्दीकपुर में। आज अल्लाह लास्ट में मुझे मौका दिया, वो भी क्या कहता, कब्रस्ताना क्या, ईदगाह का, खानका का, दरबारा का, मस्जिदा की वॉचमैन का काम है। मैं चेयरमैन नवे, कौन भी चुराना नहीं कर को वॉचमैन का काम दिया है सल्लाह मुझे, तुम्हारे दौर में चोरी होने दो ना को। इतने दिन क्या की होगा, वो भी बोले हमें कहा कि एक जगह जाकर बोला, हमारे दोस्त साथ बैठी, इतने दिन होगा, अब इसके बाद हमें सब मिलकर काम करेंगे। इतने दिन वहां से छोड़ा थी, क्या कर छोड़ को नहीं, आइंदा होने देता नहीं करूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहता ऐसे उलमाए कराम की, ऐसे बुजुर्गों की, तुम्हारे सब इदारे वाले का साथ, बहुत से इदारे वाले आमदनी नहीं, सो इदारे वाले को मैं पूछा तो जो भाई मैं हमारे तरफ से 5 मिशना लिख लो करें, वहां उनको दरमा देने दरमा दी है इमामा मौजाना को, चंद आमदनी है सो इदारे पूछा तो रिजल्ट 0। मिशना कहीं को देना, फ्यूजा कहीं को देना, देने की आदत डाल ले तो बिगड़ जाती, क्या इनके बाबा के घर चला देती, किसकी आमदनी में दे रही, किसकी आमदनी में दे रही। बंदे हमारे कारपोरेटर साहब बसकर को बोली, ज्यादा बोले तो नाराज हो जाती, बोलने का वक्त आता है, मैं तब कारपोरेटर साहब का भी सुनता नहीं। हक बोलने के वास्ते डरो ना कर को, हमारे बाबा बोल को भी झूठ बोलो ना को, सही बोलने के वास्ते अल्लाह के सिवा इसका भी मुलाजा देखो ना को बोली। रंदे वक्त आता है, खाली 1-2 महीने देखी सो, अभी मेरे पास
3 साल को 2 महीने कम 30 को 6 महीने में, 30 को 4 महीने बाकी। ऐसे प्रोग्राम हम मौलाना बोले साल को एक बार नहीं, मेरी नियत महीने को एक प्रोग्राम होना। किसके पैसा में होना? तुम्हारे पैसा में, तुम्हारे बुजुर्ग रखोगे ना वो पैसा में। आज कौन भी 10 सड़ी लेगा कर रहा नहीं। मुझे धर्मा के तार को हमारे मुश्ताक सर को पूछा, मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना फिर रहा हूँ। हमारे मुश्ताक सर को 70,000 धर्मा, हमारे यूनुस को 50,000 धर्मा, हमारा इनो खड़ी क्या नाम उनका जीशन 40 को 5,000 धर्मा, चेयरमैन को 2,000 धर्मा दे। मतलब क्या बोला? मौलाना के इदारे को 1,000 रुपए, हमारे सलाम साहब के इदारे को 1,000 रुपए, धर्मा भी खाता नहीं। और कहां जा रही वहां एक चाबी पी रही है, चाबी पी डाले बना डाले को बोले खाने के 1,000 रुपए 500 रुपए हदिया देखो, इदारे की रसीद ले ले। ये तो मेरे कने याद देने पैसे ही, मैं जाको सोना ना वहां पैसे नहीं रहते। मेरा काम हमारी नेकी, हमने अल्लाह उसका सवाब पहुंचाता है। ये वास्ते कर रही सो में सियासत नहीं, ये सियासत नहीं। कौन सी भी सियासत कर को बोले तो गलत। हमें ये जो कर रही है हमारी आखिरत बना लेने। हमारे घर से भी हमारे वालिद वालिदा सब बोझ कब्रिस्तान में सोली, बहुत रखो गए हमारे वास्ते, बहुत अच्छे अखलाक देखो गए। आज उनकी हालत अल्लाह के सिवा मुझे मालूम नहीं कि हमें उनकी राह में अम्मा के नाम से मस्जिद बनाए, वालिद के नाम से मस्जिद बनाए। हर साल में जो काम करती है एक ही चेक नियत से करते, अल्लाह इसका सवाब हमारे वालिद वालिदा को दे। हमें उनका एहसान, उनका खर्च, मेरे आंख का चमड़ा कर को दिया तो भी नहीं फेरने होता। मैं सांस में सांस रहता उनके वास्ते दुआ भी करता हूँ, उनके नाम से अच्छे काम करता हूँ। अल्लाह से गुजारिश करती है हमें कि मौलाना का एक दर्द में बहुत हिस्सा है हमारे मुफ्ती साहब का, मैं ऐलान कर दूं जमीर भाई को बात करके इमीडिएटली अज्जू ब्रदर्स के तरफ से एक डायलिसिस मशीन और जमीर भाई के तरफ से एक डायलिसिस मशीन ले लेगा को गरीबां की जो तुम्हें कर रही मौलाना, तुमना पूरा अज्जू ब्रदर्स सलाम करता है। आज जो उम्मत को जरूरत है, मैं खुद मेरे आंखों से देखा, एक ऑटो ड्राइवर डायलिसिस के वास्ते तुम्हें जो उर्माए वन से चला रही, तुम्हें 500 रुपए तुम्हारे तरफ से दे रही, 400 रुपए डायलिसिस वाले देना। तुम्हें भी कहां से दे रही तो वो मस्जिदान से जो जुम्मा का एक जुम्मा का चंदा ले रही वो मस्जिदान से दे रही। मेरे सामने एक ऑटो ड्राइवर चिल्लर पैसे गिनने पर अल्लाह सर करने खड़े थे, 340 रुपए ही उनके ने, 60 रुपए नहीं, 400 देखो डायलिस करा लेने। कौन का तो वो ऑटो के भाड़े मार लगी सुबह से आराम से वहां से जाकर। मैं क्यों हजरत कहा 400 रुपए देना अंदर, मेरे घर 360 है जो भाई 60 रुपए कम ही गया। बहुत अफसोस हुआ, बहुत बेजार हुआ। अगर मेरी पूरी प्रॉपर्टी बिका को, मेरा घर बिका को, वो डायलिसिस का करवा ले तो मैं कम डायलिसिस पेशेंट मशीन डाल ली, हाथ से तो करंट मार रहा मुझे, डायलिसिस हो रहा कैसी की मशीन घर करा हाथ पकड़ने बेजार हुआ मुझे। बिल्कुल मैं हमारे कारपेंटर समी साहब को बोले इनका डायलिसिस तुम्हें फ्री कराओगे, 400 भी लेनों को, उलमाए वन से 500 भी लेनों को, अल्लाह कराने वाला। नियत तुम्हें करो, इंतजाम अल्लाह की जात से होते हैं, अल्लाह का वादा है, खैर की नियत करो, तुम्हें इंतजाम अल्लाह करता है। अल्लाह जो सेहत दिया है, हमने वो बीमारी से बचा को रखा है, वो काम का वो नतीजा, वो काम का नतीजा। मौलाना हमने सब बैठ को मीटिंग करे, हमारे खैरुनिसा मस्जिद का एक जुम्मा का चंदा जो मैं मौलाना को बोले 4 जुम्मा का चंदा भी ले लेगा। जत्ती मस्जिद की खिदमत करना जरूरी, जत्ती मस्जिद बड़ी बनाना जरूरी, जब तक काम जैसा बनी बनाना जरूरी, उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करना भी उतना जरूरी। आज बड़े बड़े बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग का तो ये वक्की बिल्डिंग, ये वक्की बिल्डिंग, ये कॉम्प्लेक्स, ये फलाने का दुकान, फलाने, क्या फायदा हुआ उससे? बनाओ एजुकेशन यूनिवर्सिटी, बनाओ अस्पताल, कराओ डायलिसिस फ्री। ये चीजों की जरूरत है सर उम्मत मुस्लिमा को। जत्ते हमारे बड़े रखो गए, ताजमहल रखो गए, उससे उम्मत मुस्लिमा को फायदा नहीं। लाल किला रखो गए, उससे उम्मत मुस्लिमा को फायदा नहीं। अस्पताल बनाना था, एजुकेशन बनाना था, इंस्टीट्यूट बनाना था। आज मस्जिद बहुत आलिशान नहीं, मुझे मालूम मस्जिद की हालत, फजर में 21 सब, जुम्मा को 21 फुल हो रही है। और कितने मस्जिदा बनाती? हमारे एजुकेशन जो हमारे बच्चों को IAS बनाओ, KS बनाओ, इंस्पेक्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इसके बारे में फिक्र करो। ये बारे में फिक्र करने की जिम्मेदारी का नाम बोर्ड,
इसे खर्च करने की आमदनी वक्फ बोर्ड की। कहते हुए मौलाना जियाद होगा करी, इतनी इजाजत नहीं थी बोलने की। बंदे वक्त आता है बोल दो, मौलाना कब सुनता नहीं, कारपेंटर साहब कब सुनता नहीं। वक्त आता है, तुम्हें सब दुआ में याद रखो। बहुत से चीजें ही, बहुत से चीजें करने वाले ही ऐलान कर दिया वो डायलिसिस मिश्रण का। मैं एक जमीर भाई एक महीने में रिजल्ट आता रूम कर गूगल को हमारे कारपेंटर सनी साहब आज तुम्हें सब ला कोई बहुत दूर दूर से आ कोई प्रियापटन, क्यारनगर, हुनसूर, नंजनगुड़, बन्नूर, टी नरसिंहपुर, बहुत दूर दूर से हमारे भाना कोई यहाँ कोई ना नो जरूरतमंद आदमी जरूरत नहीं सुनो नहीं आते थे इतनी दूर से। जो इदारे वाले जो तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा कर को जो मिशना दे कोई, मैं पूरी वक्फ बोर्ड कमेटी की तरफ से, हमारे वक्फ बोर्ड ऑफिसर की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। कभी तुम ना हमें जो एक खैर के काम को आवाज देती, तुम्हें आगे भी साथ देना पड़ता है। कहते हुए हमारा ये सब काम करने की वजह और अपना हिम्मत देखो, बहुत बड़ी बार हमारे मुफ्ती साहब 2 डायलिसिस मिशन की गुजारिश करे। मैं मेरे तरफ से, हमारे बीजर जमीर अहमद खान साहब के तरफ से मुझे भरोसा है उनके ऊपर, ऐसे काम को कभी नहीं कहे। आज इतना बोलना मुझे इतना बड़ी सहूलत कर को एक दिहारे वाले को बात कर देना, तो पहले तो अल्लाह, उसके बाद मैं जमीर भी का शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे शहर मैसूर, पूरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। आज मुझे जो चेयरमैन बना को पूरे तौर से, और एक तुमने खुशखबरी देना चाहता हूँ मौलाना, 2 महीने के अंदर हम एक दौरा करे, कहाँ जरूरत थी एक पट्टी बनाए। परसों जमीर अहमद साहब के पास हमें पट्टी ले लगे। 4 करोड़ रुपए हमारी कमेटी के दरखास्त के ऊपर, मेरे लेटर के ऊपर हमारे वक्त के इदारे को 4 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दे। 4 करोड़। बस और एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हम ना मैसूर के अंदर जो ऑफिस है, हमें इदारे को 13,500 रुपया भाड़ा दे रही। कहता कि भाड़ा बैलेंस भी कहता सर 6 लाख रुपए हमें खरीददार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में, वक्फ बोर्ड की ऑफिस भाड़ा देना एक इदारे को 6 लाख रुपए खर्च ही। उससे फिक्र करते हुए जमीर भाई को, मई मौलाना, हमारी कमेटी, हमारे नसरुद्दीन बाबू साहब, हमारे कारपेंटर समीर साहब, निसार साहब, अमजद भी, पूरे जाको गुजारिश कर ले ना बैठने जगह नहीं, ऊपर आने है उलमाए कराम, जरा उम्र वाले को सीढ़ियां बड़ा हाइट सहूलत नहीं है, बहुत दूर दूर से आदमी 100 किलोमीटर से आती वक्फ बोर्ड को तकाजा ले ले को उन आए तो एक नमाज का इंतजाम होंगे दूसरा करने में। इमीडिएटली मैसूर को वक्फ बोर्ड बनाने के वास्ते, वक्फ भवन बनाने के वास्ते 3 करोड़ रुपए सैंक्शन कर को देखो मैसूर में। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली मिलाद नए वक्फ भवन के अंदर आप लोगों को उलमाए कराम को बिठा को वहां दुआ कर को, और अपे कभी जरूरत पड़ी तो वो वक्फ भवन में ये दूर गाँव का कौन सा भी मसला रहो, उलमाए कराम करो। हाईटेक 5 स्टार के जो रूमा रहती वैसे रूमा तुमना लोगों को उलमाए कराम को भी देखो, तुम्हें लोग बैठ को हर चीज से मशवरा गए। मैं सरकारी साहब को पूछता था, तो साल को 2 बार आते थे, कहते ईद डिक्लेयर करने, चांद देखने, बहुत सीढ़ियां बड़े जरा छोटे कराओगे। दोस्त टीम जाती समय वक्फ बोर्ड को जब सभा ईद करना, क्या चांद दिखा क्या नहीं दिखा डिक्लेयर करना ना। मैं बोले इंशाल्लाह आइंदा रमजान में तब तक कोशिश करती नए वक्फ भवन के अंदर पूरे मैसूर डिस्ट्रिक्ट के, और बेहतरीन जैसा कि एक मिनी विधानसभा रहता है, हमारे तालुका ऑफिस है, ऐसी जब भी तुम ना हमारे मैसूर के उलमाए कराम को, हमारे बुजुर्गों को जब भी वो जरूरत पड़ती है वो चीज इस्तेमाल होना, कहते हुए ये खुशी के मौके में तुम ना सुना लिया तो सुनावना को जरा जिन्हें पुड़ियान दाल को कैंसिल कर डालती कहते थे, फिर भी खुशी के टेम्पो सुना डालो। अल्लाह हिफाजत करता, अल्लाह के घर की तुम्हारी मेरी खैर की नियत की हिफाजत करने की साथ अल्लाह की, इज्जत देने के साथ अल्लाह की। कौन पुड़े क्या डाले तो तुम्हें अच्छे लोग, तुम ना मालूम पहचान है, तुम ना चेहरा देखो सीरत बोलने वाले तुम्हें लोग, हमें तुम्हें सब मिल को काम करेंगे। मैं पूरे आए हुए लोगों का, हमारे मस्जिद के वक्त के मस्जिद के जिम्मेदार का, हमारे उलमाए कराम का, हमारे स्वामी जी का, फादर का, जितने भी वॉलेंटियर से तुम्हें लोग जो इसमें हिस्सा ले, कोई जो मिशना पुष्ट मन जो खुशी खुशी तुम्हें ताउन करी है लोगों के वास्ते, तुम्हें लोगों चाहिए आपको ये मिशना दियो को तुम्हें भी वे चीजा में शामिल होना। कहते हैं आइंदा क्या भी प्रोग्राम रहा तो तुम ना खैर के नियत से वक्त के इदारे को दावत देती, तुम्हें बढ़ चढ़ को हिस्सा लो। अब भी बड़े बड़े इदारे ही उनसे बड़े बड़े काम लेने का है,
आइंदा वाले दिन में बड़े बड़े कामों को बड़े बड़े इदारे याद करती, उन्होंने भी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हिस्सा लेती। अस्सलाम वालेकुम। कहती जियाद बोल को रहा तो जेर सफर में माफी चाहता हूँ मैं हमारे उलमा। ये प्रोग्राम पूरा जो जिसने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये कामयाब होना, तुमना हमना सब सहूलत पहुंचाना, तो सबसे पहले मैं हमारे मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बिजी शेड्यूल, बहुत जिम्मेदारियां आई, पूरा मैं कितना काम कर रहा हूँ उससे जरा ज्यादा हमारे मौलाना काम करी, पूरी कमेटी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करती। वैसा हमारे मुश्ताक साहब, मुफ्ती मुश्ताक साहब, सर तुम्हें क्या भी डरो को, मुश्ताक साहब मुफ्ती साहब मुझे मालूम है तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा निगाह है, अच्छी आवाम तुम्हारे साथ है, तुम्हें जेल को गए तो एक बार हमें भी आती जेल बुझेंगे इंशाल्लाह। उनको धमकियां आते थे पंप इनोच मुश्ताक साहब जो ही इनोच हक के ऊपर बोल को उदयगिरी में कितने के दिन जेल में रखवा है, फिर भी हिम्मत हारते नहीं होना। तुम्हें भी टीपू की बस्ती के टाइगर डरोनों को इंशाल्लाह अच्छे इत्मीनान से अल्लाह